Dear students, I am continuing the topic of nationalism in Europe from where we left in previous class. Okay, so today we will discuss about the issue of women's political rights, issue of women's voting rights. Actually, women were not given any sort of voting rights in any European countries. They were demanding for their voting rights, they were pressurizing the governments, they were making their associations, they were making their uh, different types of political institution, they were publishing the newspapers also for their rights, for their women suffrage, but they were not granted any sort of voting rights. Same thing is written here only. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. Women had formed their own political association, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें ये जो दिखाए गए हैं ये वुमेन्स बैठी हुई हैं विजिटर्स गैलरी में. ओनली दे वेयर द एक्सपेक्टेटर्स, दे डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वोटिंग राइट्स. सो द इश्यू ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल राइट वाज हॉटली डिबेटेड among the European countries. Okay, but they were not granted any sort of political right and no voting rights also. ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप इसको होमवर्क साइड में करेंगे, एक शॉर्ट नोट लिखने का है. दो conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब देखिए, जो भी मोनार्की रूल वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, सब जगह चल रहा था, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में, अब वहाँ के राजाओं को, किंग्स को समझ में आ गया कि हम इस तरीके से केवल एक तरफा रूल नहीं चला सकते हैं. We must have give some concession, some rights, some rebate to the people. Only then we can manage our rules. So they started to give some rights to the common people. ठीक है, जैसे कि hence in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. ये क्या बात कह आ रही है यहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले ही काफ़ी सुधार हो चुका था, राजाओं ने जनता को अधिकार दे दिए थे. ऐसा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नहीं हुआ था. सो नाउ द मोनार्क्स ऑफ दीज एरियाज स्टार्टेड टू गिव सम पॉलिटिकल राइट्स एंड सम रिबेट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वलिटी, ये देना स्टार्ट कर दिया लोगों को, ताकि लोग क्रांति ना करें और उनका रूल बचा रहे. अब उनको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि अपना रूल बचाए रखने के लिए, राजशाही चलाए रखने के लिए लोगों को राइट्स देना ज़रूरी है. नाउ कम टू द फोर्थ टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. 4.1 जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मैं यहाँ बोल देता हूँ क्वेश्चन. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मनीज यूनिफिकेशन. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मनीज यूनिफिकेशन. देखिए, जर्मनी की जस्ट बात हमने लास्ट वीडियो में की थी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी सेंट पॉल चर्च में. ओके, बट दैट मीटिंग ऑफ लिबरल्स वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट वाज सरप्रेस्ड बाय द monarchy and the military rule. So they did not get the success of voting rights and of establishing the parliament in the Germany. But now this time the army took the leadership to promote the liberty, to promote the political rights, to promote the equality in Germany and to unify the Germany.
तो जर्मनी जो बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था, उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कैम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। जर्मनी इटली का हम बाद में पढ़ेंगे इसके। एज यू हैव सीन, nationalist feeling were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च बुलाई थी, मिडिल क्लास ने बुलाई थी, बताया था मैंने आपको। बट दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large land owners जिनको जंकर्स कहा जाता था प्रशा के, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक कि मिलिट्री ने, मोनार्की ने और बड़े बड़े लैंड ऑनर्स ने, जिनको जंकर्स कहते थे प्रशा में, प्रशा विच वाज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी इन दैट टाइम, उन लोगों ने मिलकर के मिडिल क्लास जो जर्मन लोग थे उनकी सारी डिमांड को, सारी रिवोल्ट को दबा दिया। अब यहाँ से सिचुएशन चेंज हुई और जर्मनी के यूनिफिकेशन की लीडरशिप संभाली चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने, ठीक है। साइड हेडिंग लिखिएगा आप इस क्वेश्चन के आंसर में, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन, आप लिखेंगे रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा। यहाँ से आंसर शुरू होता है, प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, समझिएगा आप इस बात को। ऑटो वन बिस्मार्क हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन आल्सो ऑफ जर्मनी, लोह पुरुष कहा जाता है जर्मनी का, जैसा भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा, उन्होंने लीडरशिप संभाली, उन्होंने बीड़ा उठाया कि अब जर्मनी को यूनिफाइड करना है। तो उन्होंने प्रशा की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मतलब जो सर्विसेज में लगे हुए लोग थे, उन सब का सपोर्ट लिया और जर्मनी को यूनिफाइड करने का बीड़ा उठाया, प्रोसेस स्टार्ट की। तो पहली साइड हेडिंग आ जाएगी आपकी रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क। दूसरा पॉइंट आएगा 3 वॉर्स, साइड हेडिंग लिखेंगे आप 3 वॉर्स। क्या किया बिस्मार्क ने? 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification in January 1871. The Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. सोचिए आप, ऑटो वन बिस्मार्क ने लीड किया प्रशा को, 3 लड़ाइयाँ लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, विच वी आर रूलिंग ऑन ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम। उन तीनों कंट्रीज़ को हराया बिस्मार्क ने अपनी आर्मी की सहायता से, ब्यूरोक्रेसी की सहायता से। और 1871 में प्रशा के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उनको जर्मनी का नया राजा, जो यूनिफाइड जर्मनी था, यूनिफाइड जर्मनी मीन्स जो जर्मनी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंट्रीज़ का रूल चल रहा था, वो ख़त्म करके उन्होंने एक यूनिफाइड जर्मनी बनाई और उसका राजा किसको बनाया? विलियम फर्स्ट को बनाया 1871 में। तो रोल ऑफ बिस्मार्क, 3 ईयर वॉर्स और प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट का राजा बनना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जर्मनी यूनिफिकेशन के आंसर के। ठीक है, आप याद रखेंगे, ईजी है, ये आता है एग्जाम में। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William फर्स्ट ऑफ प्रशा। ये सब लोग इकट्ठे हुए जब कैसर विलियम फर्स्ट राजा बन रहे थे। कहाँ पे हुआ ये फंक्शन? वर्साई में। आपको याद होगी ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्लास 9th में हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो उसी वर्साई पैलेस में ये सेरेमनी कंप्लीट हुई थी विलियम फर्स्ट को राजा
बनाने की। सभी लोग शामिल थे इसमें, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट प्रिंसेस, इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स, मीन्स सब लोगों ने यूनिफाइड जर्मनी को बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दिया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency. अब देखिए, जो नया गवर्निंग सिस्टम आया जिनने पूरा यूनिफाइड किया जर्मनी को, ये देखिए आप, ये फिगर 12 बना हुआ है मैप, प्रशा दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू कलर से देखिए सबसे बड़ा है ये। उसके अलावा ये अलग अलग पार्ट बने हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर येलो कलर से, ये सब यूनिफाइड होकर क्या बने, अब जर्मनी बन गए थे, कंबाइंड जर्मनी बन गया था। तो कंबाइंड जर्मनी बनने के बाद इसमें नए नेशनल स्टेट ने क्या काम किया, नई सरकार ने क्या काम किया, द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। ओके, उन्होंने जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम सबको क्या किया, मॉडर्नाइज करने का काम किया। प्रेशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और प्रशा ने इस तरीके से लीड करते हुए जर्मनी को एक मॉडर्न कंट्री बनाने का काम किया, और जर्मनी आज पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में एक वन ऑफ दी टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है, जो कि यूरोपियन यूनियन में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो टॉप 3 यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी आती हैं, जिसकी चांसलर एंजेला मर्केल है। चांसलर समझ लीजिए अपने यहाँ का पीएम जैसी पोस्ट होती है। तो एंजेला मर्केल के लीडरशिप में जर्मनी आज एक सुपर पावर बन चुका है। सो आई होप आपको ये जर्मनी यूनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। वी विल डिस्कस अबाउट द इटली यूनिफिकेशन in the next video. Thank you.